یہ کہانی ایک ایسے امیر ترین انسان کی ہے جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے. اسے ایک ایسا مرض لگ جاتا ہے جس سے اس کے بچے اسے اپنے ملک کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں. وہاں پر اسے کافی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہر طرح کا ٹریٹمنٹ اس کا ہوتا ہے, اچھے سے اچھا مہنگا ترین ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے. تمام ٹیسٹ تمام چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ایک دن اس کے روم میں داخل ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ بہتر ہے اس ہاسپٹل میں رہنے سے اپنے گھر میں رہیں, اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں. لہذا اس کے بچے اسے گھر لے آتے ہیں. پورے گھر میں ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے. تمام گھر والے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ ابا کو امریکہ بھیج دینا چاہیے, وہاں ان کا شاید علاج ہو جائے. وہ اپنے باپ کو امریکہ بھیج دیتے ہیں. وہاں پر امریکہ کے ایک مہنگے ترین ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر انہیں چیک کرتے ہیں, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہاں کا بھی ایک بڑا سرجن آ کر اس سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 10 سے 15 دن رہ گئے ہیں, یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اس 10 سے 15 دن اپنی فیملی میں جا کر گزاریں تو بہتر ہوگا. اب ہر طرح سے نا امید ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر اپنے ملک میں دوبارہ آتا ہے تو ایک شام کو وہ ٹہلتا ہوا روڈ پر نکلتا ہے. وہ پریشانی کے اس عالم میں ہوتا ہے کہ گھر سے اپنی کار بھی نہیں نکالتا, اپنے نوکروں کو ساتھ نہیں لیتا, نہ اپنے گارڈز کو ساتھ لیتا ہے. وہ اکیلا روڈ پر نکل پڑتا ہے سناٹے میں. رات کا ٹائم ہوتا ہے. وہ پریشانی کے عالم میں سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس زندگی کے 10 سے 15 دن رہ گئے ہیں, اب میں اس 10 سے 15 دن میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. اسے اپنی زندگی کے تمام معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں, جو اس نے کیا ہوتا ہے, اچھا کیا ہوتا ہے, برا کیا ہوتا ہے, ہر چیز اس کو وہ اس کے دماغ کے سامنے فلم کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے. اب وہ چلتے چلتے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ ایک سناٹی جگہ آتی ہے. وہاں پر ایک ٹوٹا پل ہوتا ہے. اس کی نگاہ پڑتی ہے ایک جوان عورت پر. وہ دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جوان عورت اس رات میں اتنے بجے کیا کر رہی ہے. وہ ایک آدمی سے کچھ بحث کر رہی ہوتی ہے. وہ چھپ کے اس کے قریب چلا جاتا ہے, ایک کونے کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. وہ عورت اس مرد سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, لیکن آپ مجھے 1000 روپے دے دو. میرے بچے گھر پر بھوکے ہیں, میں ان کے لیے کھانا لے لوں گی. میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں, لیکن 1000 روپے لوں گی میں آپ سے. وہ ظالم خبیث انسان اس عورت کی ہیلپ کرنے کی بجائے اس کے جسم کا سودا کر رہا ہوتا ہے, اور اس عورت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری قیمت 250 روپے بھی نہیں ہے اور تم مجھ سے 1000 روپے مانگ رہی ہو. بولے 250 میں چلنا ہے, چلو میرے ساتھ, میں تمہیں 250 روپے دے دوں گا. وہ اس مرد کو منع کر دیتی ہے اور وہ مرد اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. اتنی دیر میں یہ جو ہوتا ہے امیر آدمی, یہ سامنے آتا ہے عورت کے, تو عورت اس کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ کوئی دوسرا گھات آ گیا میرے پاس. اس کے چہرے پر تھوڑی سی خوشی آ جاتی ہے. وہ اس کے پاس جاتا ہے, عورت کے پاس, اس سے کہتا ہے کہ بیوی مسئلہ کیا ہے آپ کا. تو عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, جو بولیں گے میں وہ کروں گی آپ کے ساتھ, لیکن آپ مجھے یہ وعدہ کریں کہ مجھے 1000 روپے دیں گے. وہ کہتا ہے اس 1000 کا تم کیا کرو گی. وہ کہتی ہے کہ میرے گھر پہ بچے بھوکے ہیں, آج کل 1000 میں کیا آتا ہے اس دور میں. تو وہ مرد اس سے کہتا ہے کہ میں کوئی عیاش یا کوئی میں گندا آدمی نہیں ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتی ہے مجھے پیسے کی ضرورت ہے 1000 روپے کی. جب وہ بندہ اس عورت سے کہتا ہے کہ میں عیاش نہیں ہوں, اور اس عورت کو وہ بہن بھی بول دیتا ہے, اس عورت میں تھوڑی سی ہمت آ جاتی ہے اور وہ اس سے کھل کر بات کرنے لگتی ہے. اپنا سارا ماجرا اس کو بتاتی ہے کہ میرا شوہر مر چکا ہے, میرے 3 بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں, ان کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے کبھی یہ گندا کام نہیں کیا, اس لیے آج میں روڈ پر آئی ہوں کہ ہر جگہ پر مجھے جہاں بھی میں جاتی ہوں ہر شخص مجھ پر گندی نگاہ رکھتا ہے. کہیں نوکری مانگنے جاتی ہوں مجھ پر گندی نگاہ ہوتی ہے, کسی جگہ بنگلے پہ کام کرنے جاتی ہوں تو مجھ پر گندی نگاہ ہوتی ہے, بسوں میں سفر کرتی ہوں گندی نگاہ ہوتی ہے. اگر میں نے یہ گندا کام ہی کرنا ہے تو پھر میں اس کام کو کھلے عام کیوں نہ کروں. کہیں نوکری کر کے کسی کے ہاتھ میں کھیلوں, اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بچوں کو دن میں پالوں اور رات میں گندا کام کروں. وہ جو تاجر ہوتا ہے وہ اس کی باتوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر سے نکلا ہوتا ہے اپنی پریشانی میں, اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس عورت کی مدد کر سکے.
वो अपनी जेब में हाथ डालता है, टटोलता है अपनी जेबों को, तो उसकी जेब में चंद रुपए निकलते हैं। वो कहता है कि बहन ये चंद रुपए हैं, ये आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझे अपना भाई समझती हो तो मुझ पर एतमाद करो, ये चंद पैसे ले जाओ, ये चंद रुपए ले जाओ, मैं आपको ये दे रहा हूँ, और आपके इंशाल्लाह घर पहुंचने से पहले आपके घर पे तमाम सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। वो औरत उस पर यकीन कर लेती है और अपने घर का एड्रेस उसको दे देती है, और जो उसके पास होता है, उस औरत के पास छोटा मोबाइल, उसका नंबर भी उसको मर्द को दे देती है। अब वो औरत कई उम्मीद रखकर वहां से चली जाती है अपने घर। ये ताजिर बड़ी स्पीड से अपने बंगले पहुंचता है। बंगले पहुंचकर अपनी अलमारी खोलता है, वहां से जितनी रकम भी होती है जो उसके हाथ में आती है वो उठाता है, और अपनी बड़ी सी मर्सिडीज निकालता है और सीधा शॉपिंग सेंटर चला जाता है। वहां से जरूरत का सारा सामान खरीदता है। खरीदने के बाद उसी एड्रेस पर पहुंचता है तो वो औरत चंद मिनट पहले ही अपने घर पहुंची हुई होती है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, औरत बाहर आती है। वो कहता है बहन आपका सारा सामान ये पड़ा हुआ है, ये आप रख लो, और आज के बाद आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और एक खास बात, आपने अपनी इज्जत किसी के साथ बेचनी नहीं है। हर महीने आपके पास जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा पैसा हर महीने आपके पास पहुंच जाएगा। आपने अपने बच्चों की किफायत करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और घर में इज्जत से बैठना है। वो सामान वो घर में रख लेती है, और ये ताजिर वापस जा रहा होता है कि मैंने इससे तो वादा कर लिया कि हर महीने तुझे पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे पास तो जिंदगी के 15 दिन है, तो मेरे बाद इसको पैसा कौन पहुंचाएगा महीना। तो फौरन जाता है, उसी रात के अंदर अपनी एक वसीयत लिखता है बैठकर, और अपने वकीलों को फोन कर देता है कि एक वसीयत लिख रहा हूं, ये वसीयत मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को दी जाए, और उससे कहा जाए कि ये जितनी रकम भी मैं इसकी मुख्तस कर रहा हूँ, जितनी रकम भी मैं इसकी तय कर रहा हूँ, ये मेरे मरने के बाद ये रकम जिंदगी भर इस औरत के घर जानी चाहिए। ये मेरे बच्चों को आप नसीहत लिख कर जा रहा हूँ, और वकील साहब आपने मेरे बच्चों को इस बात पर जोर देना, तायीद करनी है इसकी। ये लिखकर वो सो जाता है। अब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है, ताजिर को कुछ नहीं होता। हर महीने ताजिर उसको पैसे भेज रहा होता है। इसी तरीके से 2 साल गुजर जाते हैं, ताजिर को कुछ भी नहीं होता। वो हशाश बशाश अपने घर में होता है, अपने काम काज कर रहा होता है। 5 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं। 20 साल उस औरत को वो बाकायदा हर महीना पैसे भेज रहा होता है, और जो नेक काम कर रहा होता है वो अलग होते हैं। लेकिन इस कहानी को बयान करने का मकसद आपको मैं एंड में पता चलेगा आपको कि इस कहानी का मेन मकसद क्या था। 20 साल गुजरने के बाद पूरा खानदान उसका हैरान होता है कि 20 साल गुजर गए, इनके पास तो 20 दिन भी नहीं थे। खैर वो अल्लाह की मर्जी होती है, जान जिसने दी है लेने का मालिक भी वही है। एक दिन वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होता है, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में जाता है, और उसकी रूह कब्ज हो जाती है उस ताजिर की। बच्चे देखते हैं कि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। बच्चे उनका कफन दफन का इंतजाम करते हैं, उन्हें दफना देते हैं। दफनाने के बाद अब कहानी में ट्विस्ट, कहानी का अब शुरू होगा। दफनाने के बाद कुछ अर्सा गुजरता है, अब टाइम आता है वालिद साहब की वसीयत पढ़ने का। बच्चे इंतहाई शरीफ होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, डिसेंट फैमिली होती है, उनमें कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं होता, डिस्प्यूट नहीं होता कोई। वकील को बुलाते हैं, वकील उनको वसीयत देता है, और एक पेपर उनको उनके हाथ में थमाता है कि ये आपके वालिद साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए। वो वसीयत को साइड में रखते हैं, और पहले अपने वालिद साहब की उस खत को पढ़ते हैं जो वकील उनसे कहता है कि ये आपने बड़े गौर से पढ़ना है। वो खत पढ़ते हैं, उस खत पे लिखा होता है इसी औरत का एड्रेस, इसका कोई फोन नंबर, कि हर महीना इतनी रकम इस औरत के घर आप लोगों ने पहुंचानी है बिना किसी सवाल जवाब के। बच्चे देखते हैं कि आज 7 दिन लेट हो गए, क्योंकि वो पहली को उसको उसे घर पैसे देने जाया करते थे। वालिद साहब के इंतकाल की वजह से 7 तारीख हो गई है, 7 दिन हम लेट हो गए। वो फौरन गाड़ी निकालते हैं
उस एड्रेस पर पहुंचते हैं उस औरत के पास, दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, औरत बाहर आती है, वो भी औरत काफी बूढ़ी हो चुकी होती है, उसे देखते हैं, उसे कहते हैं कि ये हमारे वालिद साहब ने आपके लिए हर महीना जो रकम भेजते हैं वो भेजी है। तो वो औरत मुस्कुरा कर उनसे कहती है कि बेटा मुझे रकम की जरूरत नहीं है, आज के बाद आप ये पैसे मत लाना, और अपने वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और उन्हें मेरा बहुत सलाम देना कि उन्होंने हमारी 20 साल तक हमारी कफालत की। मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो चुके हैं और इसी पहली को 7 दिन पहले मेरे बेटे को पहली तनख्वाह मिली है, तो उससे हमारा घर बार बेहतरीन चल रहा है और हम बहुत खुश हैं। लिहाजा आप आज के बाद हमें ये पैसे मत देने आना, अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा कर देना। ये औरतें बातें कर ही रही होती है तो उसके बेटों के दिमाग पर कोई बात समझ नहीं आती। उन्हें बात समझ आती है कि 7 दिन पहले पहली को पेमेंट देनी थी, यहां पर आके इस वक्त को हम 7 दिन लेट हो गए और वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2 तारीख को। इसको कहानी समझाने का मकसद आप समझें, सदका जो उसके वालिद साहब हर पहली को उसके घर बिला नागा पहुंचा दिया करते थे, सदका हमारे कुरान में है, हमारी हदीस में है, हमारे बुजुर्गान दीन बोलते हैं कि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, सदका आपकी मुसीबतों को भगाता है, सदका आपकी उम्र में इजाफा करता है। उसके बेटे जब सोचते हैं कि पहली को किसी वजह से पेमेंट नहीं पहुंच पाई, सदका रुक गया, और वालिद साहब की खैर वो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनके लड़कों का होता है कि शायद हम टाइम पर पैसा देने नहीं आए, सदका रुक गया, तो इस वजह से हमारे वालिद साहब की मौत वाक़या हो गई। खैर वल्लाह आलम इसके पीछे माजरा क्या है, लेकिन कहानी सुनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको पता चले कि हम गरीब गुरबाओं की, जिन्हें होती है ज़रूरत पैसों की, जो घर में किसी वजह से मजबूर होती हैं, जो लड़कियां कामों पर जाती हैं, जो औरतें काम कर रही होती हैं, जो बंगलों में नौकरी कर रही होती हैं, जो फैक्ट्री में नौकरी कर रही होती हैं, गारमेंट में नौकरी कर रही होती हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी कर रही होती हैं, किसी मॉल में नौकरी कर रही होती हैं, वो तमाम लड़कियाँ, वो तमाम औरतें घर से किस तरह से निकलती हैं, उनको उनके घर में किस चीज़ की नीड होती है, उन्हें ज़रूरत होती है, हम उन चीज़ों को नहीं देखते। हम देखते हैं उनके जिस्म की तरफ, हम देखते हैं उनके हुस्न की तरफ। कभी भी अक्सरियत मर्दों की मैंने नोट की है, सारे ऐसे नहीं हो सकते, मैं सब पे नहीं कह रहा, अक्सरियत मैंने मर्दों की नोट की है कि उनका 5 रुपए भी किसी को भीख दे रहे होते हैं, किसी औरत को या किसी की मदद कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे उनके कोई ना कोई मकासद छुपे होते हैं। तो मेहरबानी करें ऐसा वक्त कभी आप पर या आपकी फैमिली पर ना आए। आप आज से तैयार करें, आज से वादा करें कि आप किसी भी औरत को, मजबूर औरत को, मजबूर लड़की को किसी भी तरह से, किसी भी मामले में, किसी भी लेन देन में आप उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करोगे। इस बातों को आप अपने कई मामलात में फिट कर सकते हो। इस वीडियो को मैं बहुत लंबी कर सकता हूँ, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसे आदत है छोटी वीडियो देखने की, 1 मिनट 2 मिनट, बड़ी वीडियो नहीं देखते। बड़ी वीडियो वो लोग नहीं देखते, क्यों? कि उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास वक्त ही नहीं है, काम काज कुछ नहीं करना है उन्होंने, कोई हुनर नहीं सीखना, कोई स्किल्स नहीं सीखना उन्होंने, आवारागर्दी की वजह से उनके पास टाइम नहीं है। टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फालतू पोस्टें करते रहेंगे, लेकिन नसीहत करने वाले की एक बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये आज की नसीहत आपको 10 साल बाद समझ आएगी। जब आप पर पड़ेगी आपको तब यकीन आएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार और आप सबके लिए दुआ हो। मोहम्मद जावेद शेख, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।